Hello dear students of class 9A. Let us start solving the problems given in exercise 1.6. But before we start that, we will be revising laws of exponents that you read in class 8, and we will also see what are radicals. You know the laws that if a to the power b multiplied by a to the power c, a is the base, b is the power, a is the base, c is the power. Bases are same and powers are not equal. So when we multiply numbers with the same base, then the powers get added. Okay, ये आपको पता है. Then for example 2 to the power 3 multiplied by 2 to the power 4 is equal to 2 to the power 3 plus 4 is equal to 7. Then you also know that a to the power minus b is equal to 1 upon a to the power b. ये माइनस रहने से 1 अपॉन, ठीक है, इन्वर्स हो जाता है और ये जो पावर है नेगेटिव में ये पॉजिटिव हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल 2 to the power minus 3 is equal to 1 upon 2 cube. Then you learned that a to the power b to the power c is equal to, ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a raised to b multiplied to c. Now a to the power b divided by a to the power c. Okay, यहाँ बेस इक्वल है एंड वी आर डिवाइडिंग a to the power b by a to the power c. Say like this, a to the power b divided by a to the power c. So in this case the powers get subtracted, a to the power b minus c. Also if a to the power b is multiplied to b to the power, a to the power c is multiplied to b to the power c, यहाँ पे power same है but base is not equal. So in this law you multiply the bases and the power remains the same. So these laws have already been learned by you. Now let us see what are radicals. Students, if you have a number written in the exponential form like this, then you can write this as the square root. Okay, what is this? Square root of a. A raised to half is equal to nothing but square root of a. A raised to the power 1 upon 3 is nothing but cube root of a. A raised to 1 upon 4 is fourth root of a. This is read as fourth root of a. A raised to the power 1 upon 5 is fifth root of a, and so on. If a is raised to 1 upon n, then you can say that this is nothing but nth root of a. ठीक है, nth root of a. So numbers written in this format, okay, these numbers which in the exponential form can be written like this, like फिफ्थ रूट है तो पावर के फॉर्म में 1/5 लिखेंगे, ठीक है. फोर्थ रूट है तो जो नंबर रूट के अंदर है उसको बेस बना देना है और जो रूट बोला गया है वो 1 होकर के पावर बन जाएगी. सो पावर नोटेशन में ऐसे लिख सकते हैं और ये रूट वाली नोटेशन है. सो नंबर्स लाइक दिस आर कॉल्ड रेडिकल्स. ओके, सो यहाँ से यू कैन सी दैट radicals, numbers which are written in the radical form are also exponents. So the conclusion is that all radicals are exponents but all exponents are not radicals, है ना. जैसे a to the a cube, इसको हम रेडिकल के फॉर्म में तो नहीं लिख सकते स्क्वायर रूट. ये क्या है, सिंपली ये कह रहा है कि a को a से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये एक्सपोनेंट है, ठीक है.
ये भी एक्सपोनेंट है, बट इसको रूट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसलिए ये इसका एक और अलग नाम है रेडिकल। जितने भी रेडिकल हैं वो पावर्स भी होते हैं, बट ऑल exponents are not radicals. Find the value of 64 raised to the power half. So now I told you that this is nothing but square root of 64. So आप 8 क्लास में ऐसे स्क्वायर रूट निकालना सीखे थे ना, 8 इंटू 8, ये कर सकते हो 8 8, या फिर पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर दो दो का पेयर लगाओगे और फिर पेयर एक, हर एक पेयर में से एक बाहर निकाल दोगे, ये आंसर आ गया 8। बट अभी ऐसे नहीं करना है इस एक्सरसाइज में, ठीक है, ये समझने के लिए है। बट ये आपने पहले क्लास में किया था, ये ठीक है, लेकिन अभी आपको लॉज यूज करके फटाफट करना है, ठीक है। तो आप 64 रेज टू हाफ को कैसे लिखोगे? यू नो दैट दिस इज द स्क्वायर ऑफ 8। नाउ यू राइट 64 को 8 स्क्वायर लिख दिया, और हाफ तो पावर में पहले से था। अभी हमने लॉ पढ़ा ना, a टू द पावर p रेज टू द पावर q इज इक्वल टू नथिंग बट a टू द पावर p मल्टीप्लाइड बाई q। तो यहाँ 2.5 को मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 1/2, 2 2 कैंसिल, आंसर इज 8। सेकेंड क्वेश्चन इज 35 रेज टू 1/5। इसको भी आप ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो। फिर ये फिफ्थ रूट है, 5 का पेयर लगाना है, यहाँ 5 ही है, तो क्योंकि यहाँ पे ये फिफ्थ रूट है तो आपको 5 का पेयर लगाना है, और ये फिफ्थ रूट को हटाने के लिए 5 टाइम्स 2 की जगह आपको सिर्फ 1/2 लिखना है। बट यू हैव टू डू दिस यूजिंग द लॉ। सो ये आप 32 को कैसे लिखोगे? यू विल राइट दिस एज 2 रेज टू द पावर 5। अब ये 2 टू द पावर 5 कैसे आया? ये आप करते करते प्रैक्टिस हो जाएगा, तब आपको याद हो जाएगा कि 32 इज नथिंग बट 2 टू द पावर 5। देन ये 2 टू द पावर 5 इंटू 1/5, 5 5 कैंसिल, आंसर इज 2। ओके, अगेन you have to find the value of 125 raised to the power 1/3. So this is 5 cube 1/3, 5, 3 into half, 3 into 1/3, and you get 5. Second question of exercise 1.6. First one is find the value of 9 raised to the power 3/2. 9 को आप 3 स्क्वायर लिख सकते हो, और इसका पावर दिया हुआ है 3/2. So 2 will get multiplied to 3/2, 2 and 2 cancel, and you get 3 raised to 3. This is what? 9, 3 3s are 9, 9 3s are 27. Next question is find the value of 32 raised to 2/5. 32 you know is equal to 2 raised to 5. This is 2/5. 2 to the power 5 into 2/5. 5 5 cancel. You get 2 raised to 2, which is equal to 4. Third question. This is what? 4 square. Okay, 4 square, and you have 3/4. इसको आप 2 to the power 4 भी लिख सकते थे, ठीक है, ऐसे भी करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ मैं 4 से स्टार्ट की हूँ, बट नो प्रॉब्लम। अब 3/2, टू क्यूब विच इज 8। यहाँ मैंने 4 से स्टार्ट कर दिया, इसलिए ये स्टेप भी करना पड़ा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली आप 2 के पावर से स्टार्ट करेंगे तो ऐसा बनेगा 2 to the power 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, इसलिए 2 to the power 4, 3/4। अब ये क्या होगा? 4 4 कैंसिल हो जाएगा, है ना, 4 4 गेट कैंसिल, एंड यू गेट 8। ये यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा? a to the power -m
यू गेट 1/a⁴m। ये पावर को आप पॉजिटिव बनाओगे पहले, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये देखो, यहाँ इसको भी मैं 2 मेथड से बनाऊंगी। ये 1/125 रेज टू 1/3, पावर नेगेटिव में थी इसलिए। ये 1/5 क्यूब और उसका पावर 1/3। दिस यू गेट एज, ये 3 कैंसिल हो जाने वाला है, 1/5 आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे पहले ही ये लॉ लगा दिए थे, ये बिना लगाए भी ऐसे करेंगे। स्टार्ट करेंगे 125 क्वेश्चन है 125 रेज टू -1/3। इसको क्या करेंगे, 5 क्यूब लिख देंगे, -1/3। 3 में क्या मल्टीप्लाई होगा, -1/3। सो यू गेट 5 रेज टू 3 इंटू -1/3। 3 कैंसल, you get reciprocal of 5, which is 1/5. Third question, first bit. 2 raised to 2/3 multiplied to 2 raised to 1/5. बेस क्या है, सेम है, सो पावर को क्या करना पड़ेगा, ऐड ऑब्वियसली। सो यू विल गेट 2 raised to 2/3 plus 1/5. So what is this? This is LCM लेने से 15, 10 plus 3. You get 2 to the power 13/15 and leave it. Next question is 11 raised to half divided by 11 raised to 1/4. Obviously the base is equal in the numerator and denominator, so we have to subtract the powers. Square root of 11 is the answer. ये लिख करके भी छोड़ सकते हो। यहाँ पे क्या करना है, 1/3 क्यूब रेज टू द पावर 7, है ना। तो ये दोनों, ये 1 का भी पावर 7 हो जाएगा और ये 3 क्यूब का भी पावर 7। 1 to the power 7 is 1 and 3 to the power 3 to the power 7। 3 और 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 7 ज़ा 21। आंसर है ये। अब यहाँ पे क्या करना है, 7 to the power half, 8 to the power half। यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला लॉ था ना, देखो a to the power b, c to the power b, पावर सेम है, सो बेस को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, 7 into 8 और ये half, it will be equal to 56 to the power half. You can write this as the answer or you can continue it like this. ये 7 into 8 to the power half है, इसका मतलब स्क्वायर रूट निकालना है 7 into 8 का। 8 की जगह पे क्या लिख सकते थे, 2 into 2 into 2। तो 2 times 2, ये स्क्वायर रूट के बाहर निकल जाएगा, ये 2√14। ठीक है, ये भी आंसर है, ऐसे भी लिखोगे तभी भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, सो एक्सरसाइज 1.6 इज ओवर। नाउ स्टूडेंट्स, इन एक्सरसाइज 1.5 ऑफ NCERT there is a question number 3, which is saying that recall pi is defined as the ratio of the circumference, say C, of a circle to its diameter, say D. That is, we get pi is equal to C/D. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve the contradiction? देखो बच्चों, यहाँ पाई को C/D में लिखा गया है। ये क्लास 7 से ही आप डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हो, नहीं भी पढ़े होगे तो देख लेना, क्लास 7 की बुक में ये लिखा हुआ है दैट पाई इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। सो यहाँ पे तो देखने से लग रहा है कि पाई को तो p/q फॉर्म में लिख दिया है हमने, तो पाई को तो रैशनल होना चाहिए था। बट क्लास 9 में हमने क्या पढ़ा, दैट पाई इज इरेशनल।
इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल में है ना, दैट पाई इज इरेशनल, बट ये स्टेटमेंट एंड ये स्टेटमेंट ये दोनों तो कंट्राडिक्टरी लग रहे हैं. तो यही द क्वेश्चन इज आस्किंग यू दैट हाउ विल यू रिजॉल्व द कंट्राडिक्शन. टू आंसर स्टूडेंट्स, ध्यान देने वाली बात, सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पाई के डेफिनेशन में when it is written that pi is equal to ratio of circumference to the diameter of a circle, it is not written that C और D किस टाइप के नंबर्स या किस टाइप की वैल्यूज हैं, है ना. मैथ्स में जनरली कैसा होता है, सपोज रैशनल नंबर का डेफिनेशन है तो इट सेज ना दैट रैशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q एंड सो ऑन वेयर मेंशन रहता है जहां p और q इंटीजर्स हैं. सपोज ये लॉ है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट a to the power b into a to the power c is this and this and this, where a b and c are रियल नंबर्स. हमेशा ये a b c जो भी नंबर आया है उसका डेफिनेशन या उसका नेचर हमेशा डिफाइंड रहता है. बट यहाँ पे देखो पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी के बाद सी और डी के बारे में नहीं लिखा है. सी क्या है, सर्कमफेरेंस, डी क्या है, डायमीटर. अब आप इसको पता कैसे करते हो, बाय द मेथड ऑफ मेजरमेंट, है ना. डिफरेंट सर्कल्स लोगे आप, उसका सर्कमफेरेंस का मेजरमेंट, डायमीटर का मेजरमेंट लोगे और देन रेशियो निकाल करके यू यूज टू फाइंड दैट यू आर गेटिंग 22/7. नाउ सपोज क्या होगा अगर मैं आपको ये बताऊं कि वाइल मेजरमेंट इटसेल्फ you were getting the wrong values. Yes, dear students, when we measure different things like the length or circumference, there is always some error involved in our measurement. Like ये circle का अगर circumference measure करना है, ठीक है, diameter वगैरह कुछ नहीं पता है, तो we use the thread method. तो वो thread को यहाँ से यहाँ तक टाइटली स्प्रेड करेंगे और फिर उसका लेंथ मेजर कर लेंगे, तो उसमें एरर इन्वॉल्व हो सकती है. ठीक है, सपोज इसका डायमीटर मेजर कर रहे हैं तभी भी इस स्केल में भी कुछ एरर इन्वॉल्व हो सकती है. Why I am saying that there will be an error involved? Because your devices always give you an approximate rational values. ठीक है, जब आप क्लास 11-12 में जाओगे, देन इन योर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट, इन योर फिजिक्स लैब, योर फिजिक्स सर विल बी टेलिंग यू दैट there are many devices like vernier calipers and so on. और सबका आप लोग एक्सपेरिमेंट करने के टाइम में एक लेंथ फाइंड करोगे और आपको एक टेबल बनाने दिया जाएगा जिसमें आप एरर भी लिखोगे. ठीक है, एरर कितना है ये सब आप फाइंड करना सीखोगे. वो सब अभी हायर क्लासेस की बात है. अभी बस आप इतना जान लो कि whenever we measure a length with a scale or any other device, we only get an approximate rational value. ठीक है, स्केल या कोई भी अदर डिवाइस यूज करके इट इज नॉट इजी टू गेट और टू रियलाइज द इरेशनल वैल्यूज ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड. लाइक आप सर्कमफेरेंस और डायमीटर को मेजर कर रहे हो तो आपको मेजरमेंट करते वक्त ये कभी भी रियलाइज नहीं होगा या फिर ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको इरेशनल वैल्यूज जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग काइंड की डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो आपको मेजरमेंट से ही मिल जाए. ठीक है, तो कॉमन मेजरिंग डिवाइसेस से तो हमेशा रैशनल वैल्यू ही मिल रही है, तो रैशनल अपॉन रैशनल आपको क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर ही मिलेगा. तो इसीलिए आपको हमेशा ऐसा फील होगा और यू विल सी दैट कि pi is appearing to be rational. But what is the reality? The reality is that if somehow the irrational measurement of either C or D can be taken, ये दोनों में से अगर कोई भी एक मेजरमेंट करने के टाइम आपको पता चला कि अरे ये तो इरेशनल है, तो आपने क्या पढ़ा था प्रॉपर्टीज में, इरेशनल और रैशनल का कोशेंट क्या होता है, एक इरेशनल नंबर, है ना. तो आप एक भी ऐसा कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिखा दोगे तो यू कैन इजीली प्रूव दैट पाई इज इरेशनल. बट बच्चों ये मेजरमेंट से आप कभी नहीं कर पाओगे. ठीक है, सिंपल डिवाइसेस की हेल्प लेकर के इरेशनल मेजरमेंट पाना बहुत ही मुश्किल होता है. अभी के लिए हम बस इतना जान लेंगे कि हमारे डिवाइसेस में ही एरर इन्वॉल्व थी, इसीलिए ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दैट पाई इज इरेशनल, ये दोनों में कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं है.
The catch of this question is that we cannot highlight the non-terminating and non-repeating character of pi simply by measurement. बच्चों एनसीईआरटी बुक्स एंड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की यही ब्यूटी होती है. दिस क्वेश्चन इज सिंपली ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस यू टू द टॉपिक दैट प्रूविंग पाई इज इरेशनल इज वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, अब ये पाई इरेशनल कैसे है, इसको कैसे प्रूव करना है, ये सब आप अपने हायर क्लासेस में जाकर के सीखोगे. हायर मीन्स नॉट 11 और 12. ठीक है, मे बी इन योर एमएससी मास्टर्स लेवल. स्टूडेंट्स, for this particular question I am attaching a link in the description. Suppose you are watching the video here. ठीक है, इधर साइड में आपको एक इन्वर्टेड ट्राइंगल जैसा कुछ सिंबल दिखेगा, आप उसको टच करो, देन डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी. वहां पे मैंने बायजूस का एक लिंक शेयर किया है. In that video, a teacher is explaining something using animations and stuff like that. So it will be easy for you to understand the solution of this question. Since I am not equipped to do animations and stuff like that, so I am sharing this link. All of you kindly watch this. Thank you all.